Good afternoon, students. Today is our first class of physics. Basically, this is mathematical application or mathematical methods in physics, and this class will emphasize on highlighting the fact that how important is mathematics in studying physics. To highlight this, to understand this very simple fact, we will consider a very small problem. Okay, this we call a pendulum, simple pendulum. This is called a bob. This is a heavy bob of say metallic bob of mass m, suspended by a light string of length L, and it is displaced by an angle theta which is given as 10 degree. Say L equals to 1 meter. Okay. So what is the task? This bob is raised to some height through this angle and released. This ball when returns to the mean position it acquires some speed v. इसके अंदर कुछ मोशन का जो है वो स्पीड v आ जाता है. हमको पता करना है कि इस v का वैल्यू क्या होगा. ओके, तो देखिए अब आप यहाँ पर कुछ जो देख रहे होंगे कि थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ऑलरेडी देयर इज सम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके मेथड से पहले सोचिए. फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करना होता है कि आप फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, कुछ इसके साथ मैथमेटिकल एप्लीकेशन हैं जो हमेशा आते रहेंगे, और इन चीज़ों को यदि आप एक बार लर्न कर लेते हैं तो फिजिक्स का कोई भी पार्ट, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, मैकेनिकल फिजिक्स का हो, मैकेनिक्स का हो, या आपका ग्रेविटेशन का हो, या हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, सब में काम आएगा. सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट. वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स टू बी अप्लाइड, एंड अनदर पार्ट इज what mathematical methods we are going to follow. So there are two very important things. Okay, one is principles of physics, or you can say fundamental. This is one part, and second part is mathematical process, or say mathematical applications. Mathematical applications. These two taken together are going to solve any problem. Okay, so these two have to be learned separately. Fortunately, these mathematical applications are very small part. We'll just introduce it now, but students of mathematics will learn them in very much detail, and students of biology will have just an introduction to each of this. Okay, this entire mathematical part of physics is usually covered in 25 classes, and then we will proceed to physics. Okay, so you can understand the importance why I am emphasizing that first 25 classes of physics should be devoted to mathematical application, or say mathematical tools. Okay, to understand this we have taken this example. What are the principles of physics involved in this? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि किसी भी बॉल को यदि हम ऊपर ऐसे ले जाते हैं, we raise the potential energy. As the ball comes down, what happens? That energy converts into kinetic energy. Okay, so this angle of energy is involved if this is raised to say some height h, which is shown by this arrow. So what are the principles of physics applied here? Energy. Energy, there are two type of energy involved here. One is potential and another one is kinetic energy. Now, when the ball is at this place, say at height h, what is its energy? So we will say initial energy. Initial energy.
initially this ball has no motion, so there will be no kinetic energy, there will be only potential energy. We write this energy as E1 equals to mgh plus 0. This part of energy is potential energy and this part of energy is kinetic energy. Kinetic energy is 0. Kinetic energy you very well know. Potential energy P we write how much? mgh, and kinetic energy K we write as mv square, half mv square. So these two type of energy taken together here is how much? mgh. हाफ एम वी स्क्वायर जो एनर्जी है वो 0 है क्योंकि हियर v इक्वल्स टू 0. सो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी 0. एंड E2 in the next position, what is the energy? So the first energy is 0 because h is 0. Here it is potential energy and plus kinetic energy here is half mv square. This is the kinetic energy. Second position, I term this position as position number 1 and this position as position number 2. Okay, so this totals as half mv square. So what we see here, energy of this body is mgh, and when it is at this lower position, energy of this body is half mv square. Okay, so this means we are here considering the total energy of the body, kinetic plus potential at position 1, which is called mechanical energy. Okay, this taken together is called mechanical energy. Mechanical. Now we have found the energy. Then what are the principles of energy that need to be applied? So again there is a principle in physics which is called conservation of energy, conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy. See, these are the definitions and this is a principle. So what is the conservation of energy? Conservation of energy you might be remembering in class 9, you might have been taught, or very simply to state, if there is no work done on a body by external forces, total mechanical energy remains constant. बाहर से यदि कोई वर्क नहीं होता है तो किसी भी बॉडी का जो एनर्जी होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल रिमेन constant. So if you consider here what are the forces which are acting, external forces. Okay, so external force is tension. जब ये रस्सी से बंधा हुआ है तो सेंटर की तरफ हमेशा टेंशन एक्ट करेगा, लेकिन क्या है कि ये हमेशा वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल बनाता है. When a force acts at 90 degree to the motion of a particle or velocity of a particle, the work done by that force is necessarily 0. ये आपने पढ़ा होगा. जैसे मान लीजिए ये वाला ब्लॉक है, इस पे यदि हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और इसका वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो यदि कोई पूछेगा कि वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, तो हम लोग बोलते थे कि वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा. ये डिस्प्लेसमेंट एस है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तो ये 0 आता है. तो यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि टेंशन हमेशा 90 डिग्री पे है. देखो जो वेलोसिटी है उससे 90 डिग्री पे है ऑलवेज. यहाँ पर भी यदि लेते हैं हम लोग तो टेंशन ऐसे है, मतलब ये एक सर्कल है और इसका ये रेडियस है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो हियर वर्क डन बाय फोर्स एफ इक्वल्स टू 0. देखो फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रहा है. पहले बोला कि बॉडी यहाँ पे है तो पूरा एनर्जी कितना है निकालेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. यहाँ आया तो निकालेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. और अब हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स, जो टेंशन है जो एक्ट करता है इस स्ट्रिंग बॉब के ऊपर में, रस्सी जो लगाता है, इसका वर्क डन जो होगा वो 0 है. वर्क डन बाय यहाँ पर T लिखेंगे हम, वर्क डन बाय टेंशन इक्वल्स टू 0. अच्छा, इसमें एक और है कि इस बॉब के ऊपर जो एक फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटी का, वो भी वर्क करता है, बट हम लोगों ने कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी देखो एज्यूम कर लिया है, mgh वाला जो पार्ट है, इसीलिए उस फोर्स का वर्क डन हम नहीं निकालेंगे. तो देखो बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स से इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है ना. जैसे एनर्जी का डेफिनेशन, काइनेटिक क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है. फिर इसके बाद में
मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और यू कैन रादर से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका मीनिंग है कि यदि किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल वर्क ना हो तो उसका टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग उसको अप्लाई यदि करते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि पहले का एनर्जी E1 और बाद का एनर्जी E2, ये जो होगा ये बिल्कुल सेम रहेगा। सो E1 इक्वल्स टू E2 हम लगाएंगे। कौन सा प्रिंसिपल, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो E1 इक्वल्स टू E2 का मतलब हो जाएगा कि आपने लिखा mgh इक्वल्स टू हाफ mv²। तो देखो क्या हो गया, m और m कैंसिल हो गया। v का वैल्यू निकालेंगे यदि तो कितना आएगा, सो v विल बी गिवन एज √2gh। देखिए 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, v² है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। सो v का वैल्यू हो गया 2gh। सो फिजिक्स हैज इनेबल्ड अस टू फाइंड दिस आंसर कि v का वैल्यू जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh आ जाएगा। ओके, तो v इक्वल्स टू √2gh तो आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद एक सिंपल अब काम करेंगे कि वी विल स्टार्ट द मैथमेटिकल एप्लीकेशन कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है। वी आर गिवन दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर एंड दिस एंगल इज से 10 degree. Okay, so what is going to happen now, we'll apply mathematical application to find the answer. Okay, so let's see how mathematics will involve here on this step onward. See this now, what is happening here, suppose there is a bob here and it is raised say through some angle like this. I have made a broad picture, a little bigger picture. This height is h, जितना ये ऊपर गया ऐसे. Okay, so this is also h. And what is this value? The entire length here is L. This angle is say theta. This is also L, okay, because this is a circle. This length is equal to this length. If you put a perpendicular here, suppose this point is named, suppose this is S, this is O, this is P, this is, or say this is M and this is N, okay. So in this triangle SON, in triangle SON, if you calculate the value of cos theta will be equal to SO divided by ON. This gives SO equals to ON cos theta. This simply means ON cos theta means L cos theta. See, the entire length here is L, but if you put a perpendicular, this length is going to be L cos theta. Okay, so what is this height h? This will be difference of L and L cos theta. So h can be given as L minus L cos theta. This is equals to L into 1 minus cos theta. So see, this is the first application. आपको ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो आना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा ट्रायंगल में, तो अब ये हो गया। अब नाउ व्हाट टू डू, बिकॉज हियर थीटा इज गिवन एज 10 डिग्री। आपने पढ़ा होगा कि कॉस 30 डिग्री का ये वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का ये वैल्यू होता है। तो या तो आप टेबल आप देखेंगे कि 10 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, या फिर कुछ आप ऐसा अप्लाई करने का कोशिश करेंगे जिसमें कि आपको 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री का वैल्यू मिले। बट व्हाट आई विल से हियर दैट इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। With simple mathematical tools and trigonometrical knowledge, you can always convert this to a very practical approximate figure to get your answer. Okay, so what has to be done here? So first one is how to find the value of cos theta. Okay, let us see. Under trigonometric ratio, you will study a formula. What is that formula? The formula simply explains that
1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2. 1 minus cos theta equals to how much? 2 sin square theta by 2. So you can very easily understand now that if you do not know this, you can't apply. Okay, let us apply this to this formula. So V is given as now V equals to root under 2g, h के जगह पे अब आपको लिखना होगा L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, that is equal to 2gl into 2 sin square theta by 2. So this is equal to 2, L is 1 actually, so 2 is common, sin theta by 2 is here, and then root under is g and L. Okay, g is, we know what is the value, approximately 9.8 or say 10. L is 1 meter, so you can put the value here, 2 root under 10. Put the value of L as 1. This g is equal to, you should consider say 10 meter per second square. So what is going to happen? 2 root 10 and then is sin theta by 2, that is equal to 2 root 10. Then how to find the value of sin theta by 2? Because theta is how much? 10 degree. Okay, so let's understand how we can find out. For this you need to understand the radian measure. Okay, sin theta by 2, that is equal to sin 10 degree divided by 2, that is equal to sin 5 degree. Okay, we do not know what is the value of sin 5 degree unless we consult the trigonometric table, but it is not necessary now. How we can understand it? Let us see. Suppose you draw a circle. This is a circle, this angle is theta, this is radius r, and this arc is say L. Okay, so theta is defined as L by r. This is in radian. ये L by R C इसको बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मेजर है ये. ओके, अब देखो क्या होता है कि थीटा इक्वल्स टू L by R रेडियन है. यदि आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सपोज दिस परपेंडिकुलर इज नेम्ड एज P, वी से कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P डिवाइड बाई R, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. ओके, सो व्हाट हियर इज, if theta is small and given in radians, you can very easily understand that L and P, this arc length and this perpendicular length will be both equal if theta becomes small. देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ये जो कर्व ड्रॉ किया, दे आर सेम. सो व्हाट वी डू, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा आप लिख सकते हैं, बिकॉज L इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P. अब देखिए जब ये स्मॉल हो जाएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कर्व का लेंथ या स्ट्रेट लाइन का लेंथ दोनों सेम हो जाएगा. सो L इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P, सो L बाई R इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P बाई R. तो L बाई R इज थीटा एंड दिस इज साइन थीटा. ओके, तो सबसे पहला बात ये होगा कि हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा कैसा होना चाहिए, एक स्मॉल का कॉन्सेप्ट हो और दूसरा कि गिवन इन रेडियन होना चाहिए. तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, 5 डिग्री को. ओके, वी हैव टू कन्वर्ट 5 डिग्री इनटू रेडियन एंड देन वी कैन राइट द वैल्यू. सो हाउ दिस वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन इज अनदर नाउ मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन, कि आप मैथमेटिक्स इसका कैसे करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. ओके, आप देखिए ये फुल चारों एंगल को आप ऐसे मिलाते हैं, ये पूरा एंगल थीटा कितना होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि थीटा का वैल्यू होगा, देखिए
L बाई आर होता है ना, ये वाला L, तो इसका जो पूरा L आप निकालेंगे ऐसे चारों करके, इस L का वैल्यू जो होता है वो होता है 2 पाई आर एंड होल डिवाइडेड बाई आर। ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए रेडियस आर है, जैसे यहाँ से आप लेंगे तो ये वाला L रहेगा और ये R है, तो L बाई आर करेंगे तो थीटा आता है। जब फुल एंगल निकालेंगे तो 2 पाई आर ले लेंगे, सो दिस कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना, 2 पाई। ओके, सो थीटा इज 2 पाई रेडियन। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि दिस 4 एंगल टुगेदर 90 90 90 360 डिग्री होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, ये रेडियन में हो गया। तो यदि 5 डिग्री हम निकालना चाहते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 5। आप इसको कैंसिल कर दें, दिस इज 180 डिग्री एंड व्हेन दिस कैंसिल आउट दिस विल गिव अस 36। सो दिस इज पाई बाई 36। ओके, 5 डिग्री इज हाउ मच इक्वल टू, तो पाई बाई 36 रेडियन। पाई बाई 36 मीन्स 3.14 बाई 36, इतना रेडियन हो जाएगा। तो आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो हम लोग ऐसा बोलने वाले हैं कि साइन 5 डिग्री इक्वल्स टू साइन पाई बाई 36 रेडियन होगा एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 36। ओके, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 3.14 डिवाइड बाई 36। Okay, if you find its approximate value, it will come out to be say 1 by 12. Okay, if you go and find the trigonometric table, you can find the value of sin 5 degree to be equal to 1 by 12. आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये इससे वैल्यू आ जाएगा। So we'll put the value of sin theta by 2. Theta here was 10 degree, so sin 5 degree is 1 by 12, so this is 2 into root 10 into 1 by 12. So this cancel out 6. So how much is this? Root 10 value is approximately 3.16 divided by 6. So this is approximately 1 by 2 meter per second and this is equals to, you can say 50 centimeter per second. See, I have no intention to tell you that how to solve such a problem here, okay, and how to solve this. Rather, मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप पहले इस बात को समझ जाएं कि यदि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व रहेगा और आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। जैसे देखिए ट्रिगोनोमेट्री आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके इन्वॉल्व आप कर पाएंगे अपने आप को, नहीं तो फिजिक्स का केवल सॉल्यूशन, फिजिक्स का थ्योरी और प्रिंसिपल जानने से क्या होगा, यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट सर्टेन इक्वेशन, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम, बट यू वोंट बी एबल टू फाइंड ए सॉल्यूशन। और एग्जाम में तो भाई आंसर चाहिए, आंसर निकालने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ we have to approach study of physics. Okay, so you can very well understand what I mean to say as of now. अभी मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आपको फिजिक्स थोड़ा सा शुरू में दिखाई देता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यू फॉर्म इक्वेशन, अप्लाई थ्योरीज एंड देन you start doing certain mathematics which is very very important part of solving the problem. तो आपको मैथमेटिक्स सीखना ही पड़ेगा, इसका एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स सीखने में। ठीक है, अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फिजिक्स जो है उसमें मैथमेटिक्स एक्चुअली सीखना ही नहीं पड़ा, एक नया मैथमेटिक्स डेवलप करना पड़ा। इट वॉज डेवलप्ड बाई न्यूटन, ओके, एंड द प्रॉब्लम वॉज फेस्ड बाई गैलीलियो। वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं थोड़ा सा आपको अभी डिस्कस करके बताने जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड गैलीलियोज प्रॉब्लम, ओके, फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज आपको उस पर हम ले चलते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ एंशिएंट टाइम when Galileo was doing some experiment. What he was trying to do, let's know.
The topic that we are going to study is development of calculus. Okay. Development of calculus. और ये किसके लिए था? फॉर स्टडिंग फिजिक्स। और फिजिक्स में भी कौन सा चीज़ भाई? तो फॉर स्टडिंग द इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये टर्म आप लोग जरूर सुने होंगे। ओके, इंस्टैंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं और एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, इसका बहुत फेयर आइडिया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि मान लो आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ऐसे सपोज करो टाइम t1 पे ये डिस्टेंस कोई कवर कर लिया s1, और टाइम t2 जब यहाँ पे हुआ तो ये डिस्टेंस कोई कवर किया था s2। आई एम टेकिंग ए वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ओनली, ताकि आपको आसानी हो सीखने में। यदि आपसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम t1 टू t2, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे कि t1 से t2 के बीच जो टाइम का मूवमेंट है, इसमें डिस्टेंस इतना गया, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो s2 माइनस s1। तो एवरेज स्पीड का ये देखिए सिंबल है, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं कि एवरेज स्पीड है। टोटल डिस्टेंस है s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ऐसा कर देंगे तो यू फाइंड एवरेज स्पीड। क्लियर? एवरेज स्पीड जब आप निकालते हैं तो आप बहुत सिंपल काम करते हैं, ये कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये आपके क्लास 9 में भी था, इसमें कोई मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, तो ये तो हम लोग पहले से करते रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी इजी टू डू, बिकॉज ये जो डिवीजन है ये एल्जेब्रिक डिवीजन है। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 5, 16 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा करना है, या 0.2 डिवाइडेड बाई 7, या 7 डिवाइडेड बाई 0.2। तो ये एल्जेब्रिक डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? बिल्कुल एल्जेब्रिक डिवीजन है, जो आप डिवीजन का प्रोसेस जानते हैं। तो इसको निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैलीलियो ने एक बार इसी तरह का मोशन का एक्सपेरिमेंट टाइम और डिस्टेंस को ऑब्जर्व करके किया। लेट अस सी व्हाट इट इज एक्चुअली। गैलीलियो ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप एक इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन सेट कीजिए, इस पे हम लोग एक बॉल को रिलीज कर देंगे, सेट t इक्वल्स टू 0 में। ओके, अब ये बॉल जो होगा इसका पाथ ऐसे होगा, सपोज करो ये 1 सेकेंड में यहाँ आता है। ओके, से 1 सेकेंड इट इज़ हियर, ये 1 सेकेंड है। टाइम हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, टाइम यहाँ पर टाइम है 0 सेकेंड, यहाँ हो गया 1 सेकेंड, यहाँ है सपोज कीजिए 2 सेकेंड, यहाँ सपोज कीजिए पहुँचा 3 सेकेंड में। इतना डिस्टेंस क्यों ज़्यादा कवर किया? बिटवीन 2 to 3, बिकॉज स्पीड विल गो ऑन इंक्रीजिंग। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल को रखेंगे तो बॉल का स्पीड जो होगा वो बढ़ते जाएगा। सो दिस इज़ हाउ टाइम जो है इस तरह का हमने बढ़ा दिया और देखा कि ये डिस्टेंस है। सपोज कीजिए द स्केल वाज सेट सच दैट कि ये जो डिस्टेंस था ये था 1 मीटर, या और से समथिंग 1, दिस वाज 4, दिस वाज से 9। मतलब ये डिस्टेंस जो था बेसिकली स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा था। अब बोलो कि ये कैसे हो गया? इट इज़ पॉसिबल टू सेट द स्केल, डिफरेंट इंक्लिनेशन पे हम ऐसा सेट कर देंगे कि ये जो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन आप ले रहे हैं इसमें ये रिलेशन आ जाए, s इक्वल्स टू t का स्क्वायर। और ये आएगा, ये उस समय बहुत पता नहीं था, लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं ना ये वाला चीज़ कि s इक्वल्स टू कुछ ऐसा एक फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ t स्क्वायर। बोलिए, क्लास 9 में था ना ये वाला? तो जब ये क्लास 9 में था तो सोचो u का वैल्यू को 0 कर देते हैं,
कंसीडर u इक्वल्स टू 0 एंड a का वैल्यू हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन को कंट्रोल करते हैं कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे इस बॉल को हम छोड़ देंगे गिरने के लिए तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8। यदि इंक्लाइंड प्लेन पे गिराएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा, है ना। यदि और कम कर देंगे इंक्लाइन तो और कम होगा। और जैसे जैसे ऐसे इंक्लाइन को बढ़ाएंगे, ये एंगल को आप एक कर देते हैं कि चलो ये एंगल थीटा था, तो थीटा को बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, मतलब ऐसे एक्सीलरेट कर रहा है, ये स्पीड बढ़ रहा है। तो मान लो कि एक ऐसा एंगल है जिसपे कि a का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो s का वैल्यू आ जाएगा ना ऐसा, हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो इट इज़ पॉसिबल टू गेट s एज इक्वल टू टी स्क्वायर। और गैलीलियो के स्टूडेंट्स ने इसको सेट कर दिया, स्केल को ऐसे एंगल पे सेट किया कि एक्सीलरेशन का वैल्यू 2 रहा होगा। और तभी ऐसा हुआ कि जितना टाइम था उसका स्क्वायर में ये डिस्टेंस है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ओके, मतलब ये डिस्टेंस है कुछ ऐसा, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 9, है ना। ये अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस ऐसे निकाला गया। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड बिटवीन 2 to 3 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, आप इस डिस्टेंस को निकालेंगे कि 2 से 3 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस गया। तो देखिए ये पूरा 9 है और ये पूरा 4 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 होल डिवाइडेड। टाइम कितना लगा, तो 3 माइनस 2, क्योंकि 2 to 3 सेकेंड है, तो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ये हो गया V एवरेज, एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ जाएगा। दिस इज नॉट ए बिग इशू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने का यही तरीका है। जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस इंटायर डेटा। यदि बॉल ऐसे गिर रहा है, ऐसा सेट किया हुआ है स्केल कि s इक्वल टू टी स्क्वायर आता हो, तो ये ऐसा कुछ होगा। ये मार्क है यहाँ पर 1 2 3, तब आ गया 4, फिर आ गया 5 6 7 8, फिर 9 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे चलते जा रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब बॉल ऐसे गिर रहा होगा, इसका स्पीड बढ़ते जा रहा होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट का नाम एक रख देते हैं से A, और दिस पॉइंट इज से कॉल्ड B। तो एवरेज स्पीड बिटवीन 2 to 3 सेकेंड, और से आप इसको बोलें फ्रॉम A टू B, ठीक है, फ्रॉम A टू, है ना, ये निकाला गया है और इसको ऐसे निकालते हैं, और ये प्योर एल्जेब्रिक डिवीजन है। 5 डिवाइडेड बाई 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। यदि ये मीटर में था और वो सेकेंड में लिया गया था, तो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट फॉर अ मोमेंट। ओके, now we have a very important thing here to know that what will be the speed of this particle when it is passing through this point at A. This is speed between A to B. अब क्या टास्क आ गया, to find speed at A, एग्जैक्ट A पर, या बोलो कि स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का जब टाइम था ना यहाँ पे, जैसे यहाँ से चला, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, 1 2 3 चल रहा था, तो 2 सेकेंड के बाद एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या स्पीड था ये निकालना है हमको। और मुझे, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आपको ज़रूर पता होगा कि किसी जब पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड को निकालते हैं तो इस स्पीड को कहा जाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या बोला जाता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड।
स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब अब मामला जो है वो आ गया एवरेज स्पीड से क्या चीज़ में, इंस्टैंटेनियस स्पीड में, ये खोजने पे आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था, ये ओके है। अब इसको कैसे खोजेंगे इसका कोशिश शुरू हुआ कि भाई क्या करना चाहिए, हाउ टू फाइंड स्पीड एट ए, ठीक है ना। तो बोला कि यदि कहीं स्पीड आपको निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला या बोलो डेफिनेशन वही यूज करना पड़ेगा कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। और जब डिस्टेंस निकालना होगा तो कम से कम 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब एट ए बोलने से काम नहीं होगा, कुछ एक डिस्टेंस लेके तब उसके बीच में आप निकालिए कि व्हाट इज द स्पीड। तो अगेन वो तो यही हो जाएगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो लोगों ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा हम लोग एक डिस्टेंस लेते हैं। दिस वाज ए सजेशन कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, सपोज दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ए डैश। ओके, तो ए से लेकर ए डैश के बीच का स्पीड निकालते हैं एंड से यहाँ पे टाइम है 2, यहाँ का जो टाइम हो रहा है वो है 2 प्लस टाउ, दिस सिंबल इज कॉल्ड टाउ। ओके, और ये डिस्टेंस बहुत छोटा सा होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा ये निकालते हैं हम लोग। से दिस डिस्टेंस इज एस डैश, ठीक है, यहां से लेके यहां तक दिस विल बी वेरी स्मॉल एंड टाउ इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, तो टाउ टाइम लगा, डिस्टेंस कितना चला, एस डैश। सो यदि हम ये निकालना चाहते हैं कि स्पीड बिटवीन ए एंड ए डैश, एकदम क्लोज नेबरहुड में छोटा सा इंटरवल लेके वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब क्यों निकाल रहे हैं, तो बोला यदि यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज स्पीड निकाल लें और ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज है तो स्पीड बिटवीन ए एंड ए डैश, इसको हम लोग बोलने शुरू करेंगे स्पीड एट ए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट जब बहुत क्लोज हो जाएगा तो यहाँ का स्पीड, यहाँ का स्पीड या यहाँ का स्पीड सब एक ही बात होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज स्पीड भी निकालेंगे तो उसको बोल सकते हैं कि स्पीड एट ए हो जाएगा। लेकिन फिलहाल स्पीड बिटवीन ए एंड ए डैश ही निकाल रहे हैं एंड ऑब्वियसली इसको एवरेज ही आप बोलेंगे, ठीक है। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो होगा v निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, v इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो देखिए डिस्टेंस पहले होगा 2 प्लस टाउ का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कैसे, तो s का वैल्यू है टी स्क्वायर, तो 2 प्लस टाउ का एक स्क्वायर करोगे तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा बड़ा वाला, और छोटा वाला डिस्टेंस कितना है, तो 2 का स्क्वायर है जो 4 है, होल डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, तो बोलेंगे 2 प्लस टाउ और माइनस 2। पहले इस फॉर्मूला को एक बार समझना है हम लोग को, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट फॉर अ मोमेंट। 2 प्लस टाउ यदि टाइम लेते हैं तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतना होगा, 2 सेकंड में कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा। इफ़ यू फाइंड इट आउट दिस वैल्यू विल बी गिवन लाइक, ये वैल्यू आ जाएगा, नीचे आ गया टाउ, ऊपर में क्या आ जाने वाला है, तो आप इसको a माइनस बी ए प्लस बी का फैक्टर में ब्रेक कर दोगे। सो 2 प्लस टाउ माइनस 2 इंटू कितना, 2 प्लस टाउ प्लस 2, ऐसा कुछ आने वाला है। सो दिस कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो स्पीड v का देखिए वैल्यू कितना आने वाला है, v इक्वल्स टू, और ये कहाँ से कहाँ के लिए है, तो हम बोलेंगे कि a टू a डैश के लिए है ये वैलिड, और ये वैल्यू आ गया 4 प्लस टाउ इंटू टाउ होल डिवाइडेड बाई टाउ, ऐसा निकलेगा। जैसे आप देख लीजिए 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 और प्लस टाउ, टाउ का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा तो 4 प्लस 1 5, 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया हुआ था, एवरेज स्पीड 2 से लेके 3 सेकेंड वाला। आई होप देर इज़ नो प्रॉब्लम टिल नाउ बिकॉज वी आर स्टिल फाइंडिंग द एवरेज स्पीड। अभी एवरेज पहले जो निकला था 2 से लेके 3 सेकेंड तक का था, अभी एवरेज स्पीड जो निकला है 2 सेकेंड से लेके 2 प्लस टाउ, माने 2 to 2 प्लस टाउ सेकेंड के बीच का निकला है बिटवीन ए एंड ए डैश। लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। व्हाट वी नीड टू फाइंड, तो बोला कि स्पीड एट ए बताइए,
तो स्पीड एट ए यदि एग्जैक्ट बताना है तो इस इंटरवल को और छोटा करते जाएंगे। ये जितना ही छोटा होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट मेरा फिगर होगा, क्योंकि ए और ए डैश बिल्कुल यदि पॉइंट दोनों आपस में कोइंसाइड करने वाला हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि भाई स्पीड बिटवीन ए एंड ए डैश बोलने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ए एंड ए डैश आर सो क्लोज, दे आर सो नियर टू ईच अदर दैट स्पीड एट ए और स्पीड एट ए डैश और स्पीड बिटवीन ए एंड ए डैश ये सारा लैंग्वेज मिलके एक ही हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे स्पीड एट ए। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हो जाए। इसका मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ का टाइम बहुत स्मॉल होगा, और जब स्मॉल टाइम होगा तो कितना टाइम होगा, तो क्या स्मॉल टाइम जो होगा वो ऐसा होना चाहिए, टाउ का जो वैल्यू होगा 0.00000 ऐसे करते हुए 1 सेकेंड, वेरी वेरी स्मॉल। तो बोला हाँ ऐसा ही होना चाहिए यदि आप स्पीड एट ए निकालते हैं। लेकिन एग्जैक्ट स्पीड एट ए निकालना हो यदि, तो देखो क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे कि स्पीड एट ए यदि भी निकालना हो तो होगा 4 + टाउ इंटू टाउ बाई टाउ, वेयर टाउ इक्वल्स टू 0, क्योंकि जैसे ही टाउ का कुछ वैल्यू लेंगे ये आगे चला जाएगा। लेकिन टाउ इक्वल टू 0 कर दें तो टी बराबर कितना आ जाएगा, स्पीड एट ए मतलब कि टी बराबर 2 सेकेंड पर का स्पीड निकलेगा, है कि नहीं। तो आप देखो कि टाउ का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, लेकिन टाउ का वैल्यू 0 करोगे, देखो ये ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऐसे कैंसिल हो जाता है। आपको लगा होगा कि सर आप इसको कैंसिल क्यों नहीं कर दिए, तो हम कैंसिल यदि कर दे रहे हैं इसका मतलब कि हम मान रहे हैं कि टाउ 0 नहीं है नीचे में, और यदि हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये 0 है, क्योंकि जब ये नीचे 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड एट ए निकालना हो तो टाउ को 0 करना पड़ेगा, यहाँ तक नहीं बल्कि बिल्कुल यहीं पर कर देंगे, टाउ 0 हो जाएगा यहाँ के, ए और ए डैश कोइंसाइड करेगा तो 2 + टी टाउ और 2 एक ही बात हो जाएगा। सो जब टाउ का वैल्यू 0 हो जाएगा तब ये तो डिविजिबल नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इंस्टेंटेनियस स्पीड t बराबर 2 सेकंड पर एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैथ्स इसको बोलता है कि टाउ का वैल्यू आप 0 नहीं कर सकते, क्योंकि टाउ से डिवाइड करना है। कभी सुना नहीं है ना कि 0 में 0 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा प्रोसेस अलाउड नहीं है। तो देखो क्या हुआ, अब लोगों ने बोला कि ठीक है भाई 0 से डिवाइड करना अलाउ नहीं है, ये तो मैथ्स का प्रॉब्लम है। सो गैलीलियो डिड a very simple thing, he wrote all the mathematicians of that time, उनको चिट्ठी भेजा, there was no WhatsApp, there was no email, so उनको चिट्ठी भेजा कि भाई हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है पॉइंट ए पर, हम तो निकाल देते लेकिन जैसे ही नीचे में टाउ इक्वल टू 0 करते हैं, ये इंटरवल को छोटा करके 0 करने के लिए, तो मैथ्स बोलता है कि अब 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। तो आप लोग बताएं कि हम क्या करें, आगे का प्रोसेस कैसे करें, नहीं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकलेगा। ओके, दिस प्रॉब्लम वाज अनसॉल्व्ड फॉर सेवरल ईयर्स। बाद में न्यूटन ने क्या बोला कि 0 नहीं करना इसको कुछ ऐसा करना है। कैसा करना है, तो बोला कि v का वैल्यू होगा 4 + टाउ बाई टाउ एंड मल्टीप्लाइड बाई टाउ, और बोला कि टाउ का जो वैल्यू है वो ऐसा ले लो 0.00000, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 लेकिन लास्ट में 1 आता है, वेरी वेरी स्मॉल एंड क्लोज टू 0 है। इसको बोला लोगों ने कि टाउ टेंस टू 0। टाउ क्या है, इक्वल टू 0 नहीं है, टेंस टू 0 है। तो v का जो वैल्यू होगा उसको लोगों ने ऐसे लिखना शुरू किया कि लिमिटिंग वैल्यू या बोलो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ऑफ 4 + टाउ इंटू टाउ बाई टाउ वेयर टाउ टेंस टू 0। ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं टाउ टेंस टू 0, टाउ टेंस टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, 0 के करीब है। तो टाउ टेंस टू 0 जो है, इसको यदि आप लेते हैं तब बोला कि अब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 0 तो नहीं लिखे हैं हम टेंस टू 0 लिखे हैं। तो देखो एक नया मैथमेटिक्स डेवलप हो गया, उसमें बोला कि ये लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, इस तरह का डिवाइड करके वैल्यू नहीं, बोलता है ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है ना, और अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अब कैंसिल यदि कर दोगे तो क्या होगा, टाउ और टाउ कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 तो है नहीं।
अब 4 प्लस कितना, 4 प्लस 0.0001, तो 4.001, तो ये जो वैल्यू आएगा ये 4 ही आ जाएगा। तो कोई बोलेगा कि सर 4 प्लस टाउ 4 ही कैसे आ गया, तो हम वैल्यू नहीं बता रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू बता रहे हैं कि क्लोज में क्या वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या चीज़ के लिए कैलकुलस आया। ये जो पार्ट है ना लिमिटिंग वैल्यू का इंट्रोडक्शन जो है, आई एम जस्ट राइटिंग, मतलब इंट्रोडक्शन, ये जो था यहीं से कैलकुलस शुरू हो गया। लिमिटिंग वैल्यू, ये जो कॉन्सेप्ट आया ना, ये स्टार्ट कर दिया एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैथमेटिक्स कहो इसको, जिसका नाम था कैलकुलस। तो देखिए एक नया पेपर आ गया कैलकुलस, जिसमें कि अब हम लोग भी को लिखने लगे कुछ ऐसा कि भी बराबर होता है कुछ सर्टेन थिंग्स या लिमिटिंग वैल्यू। सपोज करो इस छोटा सा डिस्टेंस को डेल्टा एस लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने का मैथ्स में मेथड है, कोई भी छोटा चीज़ लेते हैं तो डेल्टा एस लिखते हैं। नीचे लिख रहे हैं डेल्टा टी, जो छोटा सा टाइम लगा है, जिसको आप टाउ कह रहे थे अभी। तो बोला कि भी बराबर होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लेकिन शर्त एक होगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो देखो एक सिंबल ऐसा डेवलप हो गया कैलकुलस में, इसको बाद में लोगों ने नाम दिया है ऐसा कुछ ds बाई डी टी। तो आप समझ सकते हो ना कि एक नया तरह का मैथमेटिक्स है। अब ये देखो इसका नाम ds बाई डी टी रखा गया है, भी बराबर होता है ds बाई डी टी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई डी टी। सो यदि आपसे कोई पूछे कि वाई कैलकुलस वाज डेवलप्ड, तो इट वाज डेवलप्ड टू स्टडी क्या चीज़, फिजिक्स। और उसमें भी कौन सा पर्टिकुलर चीज़, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग। जैसे देखो एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक आप ऐसे लेते हो, इसमें नल से पानी गिर रहा है, तो आप देखोगे कि शुरू में बहुत तेज़ी से पानी बढ़ेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा एकदम, है ना। तो कोई आपसे ये सवाल करे कि यहाँ पर सपोज करो ये हाइट 5 सेंटीमीटर है, उस समय ये पानी किस रेट से ऊपर जा रहा है। तो मान लो आप बोलते हो कि ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब इस हाइट पे आएगा तब पानी बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, तो ये शायद कम हो, क्योंकि अब देखो चौड़ा हो गया कंटेनर, तो ये धीरे धीरे राइज करेगा और इसका वैल्यू होगा सपोज 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सब देखो इंस्टेंटेनियस रेट है कि अभी वाटर किस रेट से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर वाटर किस रेट से ऊपर जा रहा है। तो दोनों में देखो अंतर है। और एवरेज रेट क्या होता, तो हम बोलते हैं कि देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, और मान लो कि इसमें टाइम जो लगा है वो सपोज करो लगा है 3 सेकेंड। तो आप एवरेज रेट कितना निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो बोलोगे 5/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक तो एवरेज रेट हो गया, और ये जो बताया कि अभी एग्जैक्टली इस जगह पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उठ रहा है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। सो देयर आर 2 काइंड ऑफ रेट्स, one is average rate, another one is instantaneous rate. Average rate is studied using simple algebra and instantaneous rate is studied using calculus. तो देखो नया ब्रांच भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो मैथमेटिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट। जैसे लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर बहुत सारा चीज़ अभी आएगा, ठीक है ना। आप पानी के बारे में ही डाल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर गिर रहा है ऊपर से ड्रॉप, या सैंड गिर रहा है मान लो, तो सैंड देखो कौन बनाएगा, तो शुरू में तेज़ी से हाइट बढ़ेगा इसका, लेकिन बाद में बहुत धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा, शायद ऐसे बन जाएगा। तो किस रेट से हाइट बढ़ता है ये इम्पॉर्टेंट है कि उस समय हाइट कितना था। ओके, सो आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्विंस यू अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स व्हाइल स्टडिंग फिजिक्स। तो हम लोग एक एक करके मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो करीब हम लोग 24-25 क्लास में पढ़ने वाले हैं, उस पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उसको स्टडी करेंगे। दिस इंटायर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द ऐप। आप जब जाएंगे तो उसमें चैप्टर के टॉपिक्स आपको सारे मिलेंगे, और उसके अगेंस्ट में फिर आपको वीडियो मिलेगा। सो आप उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे, नो जंपिंग फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी वेलकम टू मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स। मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स नहीं,
ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस का एक कॉम्बिनेशन के साथ फुल सिलेबस का वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से के साथ में। इसके अंदर आपको क्लास 11, 12 और पास आउट, ये तीनों क्लास के लिए हम लोग का कोर्स है, जिसके अंदर सीबीएसई बोर्ड का पूरा कवरेज है, आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का कवरेज है, नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस का कवरेज है। हर चैप्टर के लिए आपको इसमें स्टडी नोट्स पहले मिलेगा, इसके बाद आपका वो क्लासेस होगा, इसके बाद इसके अंदर जो है डाउट क्लासेस और टेस्ट एनालिसिस सेशन होगा जो टेस्ट होगा। ये पूरा कोर्स पर सब्जेक्ट 400 आवर्स का है, 11, 12 एंड आईआईटी जेईई का मिला करके। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, जिसको कि सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो नीड है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यदि आप इसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं इसके शेड्यूल के साथ में।